لاہور میں طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، نشیبی علاقے ڈوب گئے، پوش علاقے بھی زیر آب، نظام زندگی مفلوج ہو گیا، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں طوفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ اندرونی شہر میں رنگ محل، گمٹی بازار، بھاٹی گیٹ اور دہلی دروازے کے علاقوں میں 2 فٹ سے زائد پانی جمع ہو گیا۔ کئی دکانوں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے کاروبار شدید متاثر ہوا، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ حاجی کیمپ بورڈ والا چوک پر بارشی پانی کا بسیرا رہا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو جانے والے راستے پر بھی بارشی پانی نے قبضہ جمائے رکھا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کے بیرل کی چھت پر بارشی پانی جمع ہو گیا۔ گلبرگ جیسے پوش علاقے کی سڑکیں ندی نالے کا منظر پیش کرتی رہیں۔ لبرٹی مارکیٹ، ہالی روڈ، علی زیب روڈ، نور جہاں روڈ، حسین چوک، ایم عالم روڈ اور قذافی اسٹیڈیم میں بھی بارش کا پانی موجیں مارتا رہا۔ سمن آباد مین مارکیٹ میں بھی حد نگاہ تک پانی ہی پانی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وقفے سے تیز بارش واسا اور دیگر اداروں کے نکاسی آپ کے دعوے بھی بہا کر لے گئی۔ پانی کے نکاس کے لیے بنا واسا کا شاد باغ ڈسپوزل اسٹیشن بھی ڈوب گیا۔ ڈسپوزل اسٹیشن کی مشینری میں پانی جمع ہونے سے پمپ بند ہو گئے۔ شمالی لاہور کے کئی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ شدید بارش اور راوی سائفن سے آنے والے پانی سے لاہور کینال اوور فلو ہو گئی اور ملحقہ آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شدید بارش میں لاہور کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا گیا ہے، صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی خوب ایکشن میں دکھائی دیے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے قذافی اسٹیڈیم، گلبرگ، لبرٹی، کلمہ چوک انڈر پاس، گارڈن ٹاؤن، فیروز پور روڈ اور کرتبہ چوک میں بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہربنسپورہ انڈر پاس، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، یتیم خانہ چوک اور علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی صورتحال دیکھی اور انتظامیہ کو موقع پر ہی ہدایات دیتے رہے۔ محسن نقوی نے گارڈن ٹاؤن، گلبرگ اور سی بی ڈی مین بولی وارڈ انڈر پاس کا بھی دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے گلبرگ میں پمپنگ اسٹیشن کا بھی معائنہ کیا۔ کلمہ چوک سے لبرٹی کی جانب انڈر پاس میں پانی کی نکاسی کے کام میں سست روی پر برہمی کا اظہار کیا۔ سی بی ڈی مین بولی وارڈ میں پانی کی نکاسی کا کام سی بی ڈی سے واپس لینے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چند گھنٹے میں ریکارڈ بارش ہوئی، انتظامیہ اور واسا کو متحرک کر دیا ہے، شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے۔ ریکارڈ بارش ہے اور اتنی بارش کسی کے لیے سب کے گھر ڈوبے ہوئے اس ٹائم پہ، بٹ میکسیمم پانی نکل گیا ہے۔ ان آبادیوں میں بھی ڈیفینیٹلی ٹیمیں پہنچ رہی ہیں۔ مین تھا کہ جو مین روڈز ہیں، مین انڈر پاسز ہیں، وہ کلیئر ہوں سارے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہربنسپورہ انڈر پاس میں پانی کی جلد نکاسی کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہربنسپورہ انڈر پاس کو کلیئر کیا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اردو بازار کے سامنے سڑک سے اور اسلام پورہ میں کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے بھی ہدایات دیں۔ اسلام پورہ میں دکانداروں اور رہائشیوں سے ملاقات کی۔ اسلام پورہ میں شہریوں نے نکاسی آب کے کام میں سست روی کی شکایات کی، جس پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کام کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بادل برسانے والے 2 سسٹمز کے اشتراک کے باعث شدید بارشیں، موسلادھار بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے 8 سے 10 جولائی کے درمیان دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ سہیل کیسے رپورٹ کریں گے؟ مغرب سے آنے والی ہواؤں کے ساتھ بحیرہ عرب سے اٹھنے والی ہواؤں کے اشتراک کے باعث ملک کے بیشتر علاقے شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق کبھی کبھار پیدا ہونے والی ایسی صورتحال کے باعث موسلادھار بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے ملک کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی برقرار رہے گا۔ دوسری طرف 8 سے 10 جولائی کے دوران دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس وقت دریائے ستلج اور دریائے راوی کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے باعث ان سے ملحقہ سیلابی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے۔ ان حالات میں شہریوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ 35 اضلاع میں لوکل باڈیز کے الیکشن کے آخری مرحلے میں ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات آج ہوں گے، جو تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ فرید اللہ خان رپورٹ کریں گے۔ بلوچستان میں لوکل باڈیز الیکشن کا آخری مرحلہ پشین، چمن، قلعہ عبداللہ، نوشکی چاغی، خاران اور واشق سمیت 35 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات ہوں گے۔ جوب، شیرانی قلعہ، سیف اللہ، لورلائی، بارکھان اور موزہ خیل میں بھی پولنگ ہوگی۔ دکی، سبی، ہرنائی، زیارت، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور نصیر آباد میں بھی منتخب ممبرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے انتخابات کو حتمی شکل دے دی۔ تمام میٹیریل ہم نے پہنچا دیے، بیلٹ پیپر پہنچ گئے ہیں، ان کی ٹریننگ مکمل ہے اور انشاءاللہ تمام انتظامات مکمل ہے۔ 6 جولائی کو شام کو ہم آپ کو رزلٹ دیں گے۔
वोटिंग के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस, लिवीज और FC तैनात होगी। सिक्योरिटी के हवाले से हमने बाकायदा कमीशन ने भी लेटर किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी पता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इंतजाम किए थे इससे पहले भी, और इस दफ़ा भी हम उनके साथ राब्ते में हैं। कोयटा में लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हल्का बंदियों पर इतराज़ के बायस मामला अदालत में होने की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, जिसकी तकमील में 1 साल का अरसा लग सकता है। माहिरीन का कहना है कि इख्तियारात का निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए कोयटा में जल्द अज जल्द लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने होंगे। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सरमायाकारी काउंसिल के एपेक्स कमेटी के इजलास में खलीजी ममालिक की जानिब से मुमकिना सरमायाकारी के हवाले से 5 शोबों में फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में खुसूसी सरमायाकारी के लिए सहूलत की फ्राहमी से मुतालिक अमूर का तफसीली जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। कमेटी को ज़राअत, मादनियात और IT सेक्टर्स के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। सरमायाकारी काउंसिल का पाकिस्तान में सब ज़रई इनकलाब बर्पा करने के अज़म का इजहार। ज़राए के मुताबिक इजलास में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सरगर्मियाँ तेज करने पर इत्तफाक किया गया। रवा माह मुख्तलिफ इवेंट्स के इनकाद के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया गया। इजलास में रवा माह सरमायाकारी के फरोग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर सेमिनार्स के इनकाद का फैसला किया गया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह भी रवा माह किया जाएगा। पाकिस्तान के मादनी शोबे को फरोग देने के लिए हंगामी इक़दामात उठाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि चागी माइनिंग साइट का दौरा और मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतल्लिक इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया और काउंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक मौक़े तलाश करने की हिदायत। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी के फरोग के लिए काउंसिल तश्कील दी। अब बैरूनी सरमायाकारों को एक ही छत में तमाम सहूलियात दी जाएंगी। CPEC को स्कैंडलाइज किया गया, चाइनीज़ कंपनीज को भगा दिया गया, वो लाओस चले गए, कंबोडिया चले गए, वियतनाम चले गए। अब फिर जब से हमारी हुकूमत आई है, हमने CPEC को दोबारा मेन स्ट्रीम पे लाए हैं। जब हम पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलेंगे तो ना सिर्फ ये कि उसमें हमारी क्रॉप्स, नई क्रॉप्स की वैरायटी, बल्कि हॉर्टिकल्चर, इसी तरह हमारे लाइफ स्टॉक, हमारी फिशरी, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। एहसन इकबाल ने बताया कि वज़ीर आज़म 7 जुलाई को ज़रई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत की तरजीह है कि एनर्जी को फॉसिल फ्यूल पर लेकर जाएं। तवानाई के शोबे में सोलर एनर्जी में मराहत दी जाएंगी। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि CPEC गेम चेंजर मनसूबा है। CPEC ने वो बुनियाद मुहैया की जिसके ऊपर कामयाब मईशत की इमारत खड़ी कर सकते हैं। वेलकम बैक। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ स्वीडन के नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन अमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़या पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी सिफारती ज़राए के मुताबिक स्वीडन के सफ़ीर की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी के बाइस स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब किया। स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को स्वीडन में मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस हैं। पाकिस्तान में स्वीडन का सफारत खाना सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस अगस्त से गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के मराद का बिल मंजूर कराने के मामले का नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने चेयरमैन सेनेट के मराद से मुतालिक बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन सेनेट के लिए गैर मामूली मराहत पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बरहम। बिल की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने मराहत के बिल की मंजूरी में हिस्सा लेने वाले अरकान से वजाहत भी तलब कर ली और कहा है कि चेयरमैन सेनेट की मराहत के बिल की मंजूरी में क्यों हिस्सा लिया। अरकान ने वजाहत में कहा, हमसे उजलत में बिल मंजूर कराया गया है, बिल के हवाले से मालूमात नहीं थी, बस मंजूरी का कहा गया।
गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने नए वजीर आला का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए कायदे-ए-वान का इलेक्शन शेड्यूल था। गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला के इंतखाब के लिए इजलास तलब किया गया था। PTI के रुकने असम्बली हाजी गुलबर खान ने इजलास मुलतवी करने के लिए सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई थी। हाजी गुलबर खान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। 4 अरकान की हिमायत का दावा भी कर दिया। नए वजीर आला के लिए PTI ने राजा आजम खान, पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को उम्मीदवार नामजद कर दिया। उधर वफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान डार अली खटक की जगह अफजल महमूद बट को नया IG पुलिस तैनात कर दिया है। अफजल महमूद बट पंजाब में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। मुस्तकबिल में सियासी लाहे अमल के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने सर जोड़ लिए। मुशावरती इजलास में अहम पॉलिसी फैसले की मंजूरी दे दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी से भी इलाहा के इत्तेहाद नहीं करेगी। पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, फिरदौस आशिक अवान और दीगर शरीक हुए। इजलास में अहम पॉलिसी फैसले की मंजूरी दी गई। फैसला किया गया कि पार्टी का किसी से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं होगा। पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और इंतखाबी मुहिम 4 सूबों में चलाई जाएगी। 4 सूबों में सियासी रहनुमाओं से राब्ते के लिए मरकजी क़यादत दौरे करेगी। इजलास में पार्टी में शामिल होने वालों के लिए भी नया लाहे अमल तय किया गया। इजलास से खिताब में जहांगीर तरीन का कहना था कि हमारा फोकस आम आदमी के मसाइल का हल और महंगाई का खात्मा है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करेंगे। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालेगी। जहांगीर तरीन ने पार्टी ऑफिस का दौरा भी किया। दफ्तर में होने वाली मुख्तलिफ पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया और उन्हें जारी रखने की हिदायत की। PTI दौर में कम शरह सूद पर अरबों डॉलर कर्ज की फराहमी का मामला। PSC के मुसलसल इसरार पर गवर्नर स्टेट बैंक ने इन कैमरा इजलास में फहरिस्त पेश करने की मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 42% कर्जा लेने वाले टेक्सटाइल सेक्टर से हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। गवर्नर स्टेट बैंक का PTI दौर में कम शरह सूद पर अरबों डॉलर कर्ज लेने वालों की फहरिस्त देने से इनकार। PSC के मुसलसल इसरार पर गवर्नर स्टेट बैंक की इन कैमरा इजलास में फहरिस्त पेश करने की मशरूत आमादगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 42% कर्जा लेने वाले टेक्सटाइल सेक्टर से। चेयरमैन PSC नूर आलम खान ने वाज़ेह किया कि कवायद के बरक्स डॉलर्स में कर्ज देने वाले बैंक कमर्शियल हों या कोई और फहरिस्त देना होगी। हिदायत की कि स्टेट बैंक 3 रोज के अंदर कर्ज लेने वालों की फहरिस्त फराहम करे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि बैंक और कस्टमर्स के दरमियान तमाम मालूमात का तबादला खुफिया होता है। फहरिस्त इन कैमरा इजलास में पेश कर सकते हैं। रुकन कमेटी बरजेस ताहिर ने इन कैमरा ब्रीफिंग की मुखालफत, जबकि सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने हिमायत की। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि कर्ज की कुल रकम का 15% नेशनल बैंक और 85% कमर्शियल बैंकों ने दिए। मजमूई तौर पर 690 अरब रुपए का मुतालबा किया गया, जबकि 420 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। कारोबारी अफराद के लिए कुल 394 बिलियन रुपए जारी किए गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 42% कर्जा लेने वाले टेक्सटाइल सेक्टर, फूड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज के लिए 12%, सीमेंट एंड स्टील सेक्टर के लिए 9%, ऑटोज और टायर मैन्युफैक्चरर के लिए 7% और अलाइड इंडस्ट्री के लिए 5% कर्ज दिया गया। लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट कराची ने माली साल 2023 में रिकॉर्ड 2000 अरब रुपए के महसूलात वसूल किए। LTU कराची के 400 अरब रुपए मालियत के केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू गरधारी माल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौशी मुश्किलात के बावजूद LTU की महसूलात 23% इजाफे से 2000 अरब रुपए रहीं, जो रिकॉर्ड है। कमिश्नर LTU का कहना था कि मुल्की मजमूई महसूलात में LTU कराची का हिस्सा 30% तक है। प्रिसाइजली जो ग्रोथ की है इस साल वो 400 बिलियन रुपीस की है। 23% पर बनती है ग्रॉस में और नेट में बनती है 24%। नेशनल ग्रोथ हमारी जो FBR की कलेक्शन है वो 16% जो है वो प्रोविजनल है, लेकिन हमने 24% से ग्रो किया है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का कहना था कि लार्ज टैक्स पेयर यूनिट कराची के मुख्तलिफ अदालतों में 3649 केसेस ज़ेर समात हैं, जिनकी मालियत 433 अरब रुपए बनती है। इन केसेस में इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स के केसेस शामिल हैं। वेलकम बैक। पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची के माड़ीपुर रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया, जिसके बायस अतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया।
पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कराची से मिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बिजली और गैस की अदम फरहमी के खिलाफ लियारी और मच्छर कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से माड़ीपुर रोड के दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना था कि इलाके में पीने का पानी और गैस भी दस्तयाब नहीं। बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे से जायद है। लाइट हम लोगों को दवाई की तरह मिल रही है एक घंटे के लिए। लियारी के आवाम के साथ इन्होंने अरसा दराज से मोइंजो जड़ो वाली शादी जग रचाई हुई है, इसको मोइंजो जड़ो बनाना चाह रही है। कौन सा कुरान है जो ये पूछने भी नहीं आता है, न पानी नहीं है, न गैस नहीं है, न बिजली नहीं है। 3 घंटे लाइट जाती है, 1 घंटा आते हैं। क्या काम होता है हमारा? हम लोग पैसे से पानी लेते हैं, पैसे से गैस लेते हैं। ये बोलते हैं कि लियारी हमारा घर है, लेकिन लियारी के लिए कुछ क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर वक्फे से पथराव किया गया, जिसकी वजह से मुताद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद ने माड़ीपुर रोड के दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, जिसकी वजह से माड़ीपुर रोड और अतराफ के इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सड़क को क्लियर करा के पुलिस की भारी नफरी माड़ीपुर रोड और अतराफ की सड़कों पर तैनात कर दी गई है। कराची मेमन गोट में डायरिया और हैजे से मुतासर मरीजों की तादाद 800 हो गई। मुराद मेमन गोट के गवर्नमेंट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साले कहते हैं कि अब सूरत हाल कंट्रोल में है। फैसल खान रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट अस्पताल मुराद मेमन गोट में जेर इलाज ये मरीज डायरिया का शिकार हैं। दस्त और उल्टियाँ इतनी लगी कि अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इलाका मकीन कहते हैं गंदे पानी की फरहमी के बायस बीमारी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। पानी की खराब होने की वजह से और गर्मी की शिद्दत, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो मजदूर लोग जो तबका है, तो एक तो मौसम की वजह से, दूसरा पानी की वजह से, इस वजह से अचानक ये ब्रेकआउट हो गया था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद साले कहते हैं डायरिया से मुतासर 800 केसेस अस्पताल में रिपोर्ट हो चुके हैं। नियर अबाउट 700 to 800 पेशेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। 800 के करीब पेशेंट आ चुके हैं जो है ना। डायरिया या आप इसको गैस्ट्रो बोल सकते हैं, जिसमें जो लूज मोशन वगैरह भी होते हैं, पेट में दर्द होता है और उसके अलावा वोमिटिंग वगैरह होती है। आज जो अभी तक पोजीशन है, कम से कम 7-8 पेशेंट हमारे इमरजेंसी में एडमिट हैं। वबा से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानिब से मकामी डिस्पेंसरी में उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने, सफाई का ख्याल रखने और लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। हुकूमत ने पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। ज़का अशरफ को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में तलब किया गया। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी। नई कमेटी में ज़का अशरफ को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को भी ओहदे से हटा दिया। महमूद इकबाल खाकवानी को पीसीबी का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है। मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी समेत दीगर अमूर को देखेगी। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी 10 अरकान पर मुश्तमिल है। कमेटी में कलीमुल्लाह खान, अशफाक अख्तर, मुसद्दिक इस्लाम, अजमत परवेज, जहीर अब्बास, खुरम सोमरू, ख्वाजा नदीम, मुस्तफा रमदे और जुल्फिकार मलिक शामिल हैं। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में तलब किया गया है।